Hello everyone. So let's move further. This session is on the hydraulic fracturing. Okay, this is the second stimulation techniques. Okay, second what we have seen well stimulation technique. Okay, in which this is the part 2 which cover the hydraulic fracturing. Okay, let me check the voice first. Okay, so in hydraulic fracturing, okay, what we are going to do, we generally fracture. Okay, we generally fracture, and when we fracture, the flow linearly or bilinearly based on the infinite acting fracture or finite acting fracture, the flow rate you will get. Okay, so basically it will increase the permeability efficiently. Okay, so when you choose the hydraulic fracturing over the acidization, so the first condition is if your K is very low. Okay, if your K is very low, then obviously the acid cannot flow and you must have to use this fracturing technique. So whenever your is permeability is low and acid is not able to flow inside that damaged zone, so at that time your acid might, if you might be, if you use the acid and then it uh, if you use the acid in lower permeable zone, then might be acid penetrate the very less length behind the well bore. Okay, so rather than that, you can use the hydraulic fracture over the that acidization. So let's start with the fracturing. So what we will cover in this session, okay, this is the reason where you choose the hydraulic fracturing, as well as the fracturing will give you obviously higher the flow rate efficiency. Okay, now we already seen, okay, this is the content of the book, but we will not cover this whole book. Okay, we will cover only important things. Okay, and we have mostly covered the design part, but we will see, I have already told you in the drilling we will cover the formation, breakdown, pressure in the production. So this is the chapter where we will cover that topic. And today obviously you can identify from my voice, okay, I have a very I can say I have a very weak health today. So it's might be my voice is not that much which you listened in last few videos. Okay, ये थोड़ा बहुत जो आवाज़ की जो सुरीलापन है वो चला गया है, ठीक है, और मैं ज़्यादा तेज़ी से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, बट फ्रैक्चरिंग बचा है एक, इसके बाद वी विल मूव ऑन दी वर्क ओवर, वी विल कंप्लीट एंड वी विल मूव ऑन दी आर्टिफिशियल लिफ्ट. सो ये मैं आज ही कवर करता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ब्रेक ना हो, ठीक है, पूरा पोर्शन कवर हो जाए वेस्ट स्टिमुलेशन वाला. सो डोंट वरी. ओके, आई विल स्पीक स्लोली, that means not loudly, but I will speak whole sentences, all important things I will cover. I will not skip any single statement which is important for this chapter, and this is again important for the gate as well as the knowledge point of view. Okay, so what we have seen, so first of all in drilling we have seen formation integrity test. So in that we have seen the orientation of the fracture, that I will not cover here. orientation of the fracture, कहाँ पे किस तरह का फ्रैक्चर होगा, ठीक है, और स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन आई हैव ऑलरेडी कवर. stress distribution you can go in the drilling, you can check the video of the formation integrity test where I have covered these two topic. Okay, then I have covered the surface pressure versus flow rate curve explanation, that I am not again going to repeat here, because this is again we have already covered in the that drilling purpose. So if you don't know this, okay, please go back and check all those things. Okay, we have seen the in the previous video also we have calculated the one question Benetton formula we have seen, which give you the fracture gradient as a function of the sigma and
sigma यानी कि metric stress as well as the pore pressure. Okay, so this we have already covered, but this is not usable here. We will use the only force balance here to calculate the formation breakdown pressure. Okay, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला गया है बेनिटन फार्मूला यूज़ करो, ठीक है। और बेनिटन फार्मूला का यूज़ भी आपको बताया था। अगर आपको पोर प्रेशर गिवन है तो यू कैन फाइंड दी फ्रैक्चर ग्रेडियंट एट एनी पॉइंट। ओके, पोर प्रेशर गिवन है, एक पॉइंट पे दोनों डेटा गिवन है तो दूसरे किसी भी पोर पॉइंट पे यू कैन कैलकुलेट दी ये वाला, ठीक है। सो दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ दी। ओके, सो यू नो द फ्रैक्चर डायरेक्शन इज ऑलवेज perpendicular to minimum. Okay, you know fracture orientation, or I can say direction orientation is always perpendicular to what? Sigma mean and parallel to the what? Sigma max. Okay, you know this thing. maximum होगी उसके parallel जाएगा, minimum होगी उसके perpendicular जाएगा, ठीक है। और जो मिनिमम होगी, ठीक है, मिनिमम, ठीक है, नॉर्मली हम अर्थ के मिनिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेस को क्या कहते हैं, इसको ही हमने क्या बोला था, फ्रैक्चर का प्रेशर बोला था कि नहीं बोला था? ऑब्वियसली बोला था। सो ये सारी चीज़ें आपको पता है। देन आई वुड लाइक टू डायरेक्टली मूव, ठीक है। अब मैं स्किप नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाली बुक में से स्किप नहीं कर रहा हूँ, बट यू नो ऑल दिस थिंग्स। ओके, डू यू नो? यस, नहीं पता है तो ये वाले पेज पढ़ लो, ठीक है, तो पता चल जाएगा। या फिर मैं तो बोलता हूँ कि इससे मत पढ़ो, ठीक है, यू ऑलरेडी नो दिस ऑल थिंग्स। ओके, ये देखो, ये एक 3D फिगर दे के रखी है आपको, ये छोटा नहीं हो पाएगा इससे ज़्यादा। तो देखो, ये एक 3D फिगर है, यू कैन सी, ये एक 3D फिगर है, ठीक है। ये आप टॉप से देखोगे तो ये एक प्लेन है, ठीक है। ये वाला सर्कल जो रेड वाला मैंने ड्रॉ किया वो एक प्लेन है। यहाँ पे ये आपका वेल है, ठीक है, ये क्या है, आपका वेल है। और यू नो कि आपका यहाँ से ऊपर से क्या लग रहा होगा, यहाँ से देखो हर एक पे ऊपर से ये वाले प्लेन में क्या लग रहा होगा, यहाँ पे देखो ये वाले डायरेक्शन में ओवरबर्डन प्रेशर होगा, ठीक है। क्या होगा? ओवरबर्डन प्रेशर होगा। एंड यू नो यहाँ पे एक ये वाला देखो, ये हॉरिजॉन्टल ट्रेस है आपका, ठीक है। और एक कहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन में क्या होगा, एक और आपका हॉरिजॉन्टल होगा। तो ये वाला, ठीक है, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर होगा ऑब्वियसली। और ये वाला क्या है, इसके परपेंडिकुलर में वर्टिकली है, ठीक है। बुक में आपकी इस तरह से डाउनवर्ड है, ठीक है, ये इजीली अंडरस्टैंडेबल है। ओके, सो आपको पता है कि आपका ये वाला क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जब तक वहाँ पे माउंटेन या रीफ या ये सब ना हो तब तक आपको पता है कि ये वाला आपका मैक्सिमम होता है। तो यू कैन सी दिस फ्रैक्चर इज वर्टिकल फ्रैक्चर, यू कैन सी ये वर्टिकल फ्रैक्चर है। ओके, वर्टिकल फ्रैक्चर आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो इसमें लिख के भी दिया है कि वर्टिकल फ्रैक्चर क्यों है, बिकॉज ये मैक्सिमम है इसीलिए, ठीक है। ये वाले मिनिमम है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है या फिर एक मिनिमम है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक इक्वल है या मिनिमम है। अगर नॉर्मल टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हुई होगी तो एक मिनिमम होगा, ठीक है। मान लो ये वाला मिनिमम है तो उसके परपेंडिकुलर आपके फ्रैक्चर है, यस है, तो ये वाला मिनिमम है तो ये इंटरमीडिएट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट यू नो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द ड्रिलिंग सेशन। ओके, इफ़ यू डोंट नो देन गो बैक एंड लुक एट दी दैट ऑल थिंग्स। ओके, और आपको क्या एक चीज़ पता ही थी, ये जो ओवरबर्डन वाला है, ठीक है, ये ओवरबर्डन वाला है वो कहाँ पे लाई करेगा, दैट विल लाई ऑन दी, ये ओवरबर्डन है दैट इज नॉट दी ओवरबर्डन है, दैट इज द सम ऑफ दी, ये जो ओवरबर्डन मैंने लिखा है दैट इज द सम ऑफ द सिग्मा मैट्रिक्स प्लस पोर प्रेशर, ठीक है, यू नो। ओके, दैट इज द सम ऑफ द सिग्मा मैट्रिक प्लस पोर प्रेशर, ठीक है। सिग्मा ओवरबर्डन इज द सम ऑफ द मैट्रिक्स एज वेल एज द पोर प्रेशर, ठीक है। तो ये इसी को क्या बोला था हमने, आपको पता हो तो इसी को हमने इफेक्टिव मैट्रिक ट्रेस बोला था, ठीक है। इफेक्टिव मैट्रिक्स ट्रेस है, ठीक है। ये क्या है आपका इफेक्टिव मैट्रिक ट्रेस है। दैट मीन्स कि आपका यहाँ पे पोर प्रेशर की वजह से, ठीक है, मान लो पोर प्रेशर ना होता, ठीक है, मान लो पोरोसिटी 0 है, मान के चलो पोरोसिटी
जीरो है, ठीक है। पोरोसिटी क्या है, जीरो है। एक चीज़ ये समझ लो अच्छे से, अगर पोरोसिटी आपका जीरो है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अगर इसमें पोरोसिटी आ रहा है, ठीक है, इसमें मान लो 20% जितना पोरोसिटी आ रहा है, ठीक है, सेकंड केस है 20% पोरोसिटी है। सो मान के चलो ये वाले केस में सिग्मा इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू जीरो था, तब ये इसकी ओवरबर्डन की वैल्यू थी मान के चलो 10 pPg। डेंसिटी में तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये वाली वैल्यू कितनी थी, इनिशियली 10 pPg थी, ठीक है, कितनी थी, 10 pPg थी। उसके बाद आपका कुछ पोरोसिटी आया, क्या आया आपका, पोरोसिटी आया। दैट मीन्स आपका कुछ पोर प्रेशर इस्टेब्लिश हुआ। क्या हुआ, आपका पोर प्रेशर इस्टेब्लिश हुआ। तो ये मान के चलो 20%, इसका अब कितना परसेंट लगेगा, इसका अब 80% लगेगा और 20% इसका लगेगा। और इसकी डेंसिटी है मान के चलो, फ्लूइड की डेंसिटी कितनी लेंगे, 8 ले लेते हैं, ठीक है, 8 pPg है। सो ये ओवरऑल वैल्यू अब 10 ना मिलके ये अब 10 मिलेगी नहीं, ऑब्वियसली ये 10 नहीं मिलेगी, ये अब मिलेगी ये दोनों के बीच में, ठीक है, 8 to 10 के बीच में आपको एनी वैल्यू यू विल गेट दी एनी वैल्यू इन बिटवीन दी 8 and 10, ओके। सो जब भी पोर प्रेशर है, ओके, जब भी आपका पोर प्रेशर आएगा तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा आपको, पोर प्रेशर आपका जब भी आएगा, ओके, दैट विल रिड्यूस दी ओवरबर्डन प्रेशर, ठीक है, ओवरबर्डन प्रेशर को रिड्यूस करेगा, ठीक है, जितनी ज़्यादा पोरोसिटी होगी। एंड अगर ओवरबर्डन प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, मान के चलो ओवरबर्डन प्रेशर डेप्थ के साथ 1 psi पर फीट पे चेंज होता है, ठीक है। अब मान के चलो ओवरबर्डन प्रेशर आपका कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। सो ओवरबर्डन प्रेशर कांस्टेंट रखना है आपको, ये वाला 10 pPg रखना है। और आपको पता है ये 8 pPg है, ठीक है, ये क्या है, 8 pPg है। तो वहाँ पे मैट्रिक ट्रेस क्या हो जाएगी, यू हैव टू एडजस्ट द मैट्रिक ट्रेस, ओके, यू हैव टू एडजस्ट द मैट्रिक्स ट्रेस, ओके। सो ये पोर प्रेशर हमारा काउंट नहीं होता है मैट्रिक्स की ट्रेस में, ठीक है, ये ओवरबर्डन में दोनों का सम होता है, ठीक है। सो दिस फॉर्मूला यू नो, सिंपल सा फॉर्मूला है, उसके बेसिस पे बहुत सारे साइंटिस्टों ने फ्रैक्चर प्रेशर निकालने का फॉर्मूला भी दिया है, बट वो सारे फॉर्मूला किसी ना किसी अजम्पशन के साथ है, ठीक है। सो टुडे वी विल सी दी हाउ वी कैन कैलकुलेट दी फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर, ओके। सो ये आप देख लेना, ठीक है, पढ़ना है तो पढ़ लो। ओके, और यहाँ पे फिर आपको ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बताया हुआ है विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ओके। ये देखो वी हैव सीन दिस टाइप ऑफ इन द फॉर्मेशन इंटीग्रिटी ट्रेस, ठीक है, रिवाइज कर लो एक बार, नहीं पता है तो, ओके। और यहाँ से इन्होंने डिज़ाइन स्टार्ट किया, बट बिफोर गोइंग ऑन दिस डिज़ाइन, ओके, वी विल सी दिस फॉर्मूला इन डिफरेंट वे। बट पहले उसके पहले देखो, उसके पहले लेट्स स्टार्ट, लेट्स लुक एट दिस कर्व विच वी हैव ऑलरेडी सीन। बट यहाँ पे देखो कुछ आपको चीज़ बतानी है मुझे, दैट इज दी, कहाँ पे गया, ओके, ये वाला, ठीक है, विच दिस कर्व वी हैव कवर्ड इन दी ड्रिलिंग, ओके, दिस वी हैव कवर्ड इन दी ड्रिलिंग। देखो ये कुछ नहीं है, ये है आपका सरफेस प्रेशर, आपने जो सरफेस पे से अप्लाई किया था वो वाला प्रेशर था। और यहाँ पे क्या है, टाइम है, या फिर यू कैन सी फ्लो रेट है, आप फ्लो इंजेक्ट करवाते थे, ठीक है। तो देखो इनिशियली क्या है, देखो ये वाला इनिशियली इंक्रीज होता था, सॉरी, ये वाला इनिशियली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला क्या था, ब्रेक डाउन था, दैट मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्मेशन क्या होता था, ब्रेक डाउन होता था, ठीक है। सो वी आर इंटरेस्टिंग टू फाइंड दिस प्रेशर, ओके। हम अभी डिज़ाइन देखते हैं, हम हमारे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए कैसे फॉर्मेशन ब्रेक डाउन प्रेशर निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, पेड वॉल्यूम, ओके, पेड वॉल्यूम, दैट मीन्स यू हैव टू इंजेक्ट इनिशियली दिस वॉल्यूम, ओके। फर्स्ट स्टेज आपका, आप हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कैसे करोगे, मान लो आपको ये वाले डेप्थ पे फ्रैक्चर लगाना है, ठीक है, यहाँ पे आपको फ्रैक्चर क्रिएट करना है। सो इनिशियली, ठीक है, एट लोअर फ्लो रेट, देखो यहाँ पे ये सरफेस प्रेशर वर्सेस क्या है, फ्लो रेट का ही तो कर्व है। तो इनिशियली यू विल फर्स्ट स्टेज, ठीक है, वहाँ पे प्री प्लस होता था, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यू हैव टू इंजेक्ट दी पेड वॉल्यूम। पेड वॉल्यूम क्या करेगा, पेड वॉल्यूम जस्ट यहाँ पे
फ्रैक्चर को इनिशिएट करवाएगा, ठीक है, इनिशिएट करवाएगा, ठीक है, इन दी सेकंड स्टेज, ओके, इनिशिएट करवाएगा, बट यू नो, ठीक है, बट यू नो द फ्रैक्चर क्लोजर प्रेशर, ओके, फ्रैक्चर क्लोजर प्रेशर इज द प्रेशर, यू कैन सी हियर इज द फ्रैक्चर क्लोजर प्रेशर, ये वाला क्या है आपका फ्रैक्चर क्लोजर प्रेशर है, दैट इज द वेरी लो वैल्यू देन दी योर ब्रेकडाउन प्रेशर, दैट मीन्स आपको 5000 psi, अगर आपको फ्रैक्चर करना है तो आपको 5000 psi, ठीक है, फ्रैक्चर नहीं, मैं बोलता हूँ आपको ब्रेकडाउन ही करना है पूरा का पूरा, तो ब्रेकडाउन करना है तो यू हैव टू अप्लाई 5000 psi प्रेशर ऑन दैट फॉर्मेशन, बट अगर वही फ्रैक्चर को आपको क्लोज करना है देन यू नीड टू रिक्वायर वेरी लेस प्रेशर, ओके, आपको बहुत ही कम प्रेशर उस टाइम पे अप्लाई करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपका जो फ्रैक्चर आपने पेड वॉल्यूम इंजेक्ट करके, ठीक है, आपने जो पेड वॉल्यूम इंजेक्ट करके जो फ्रैक्चर क्रिएट किया है, ठीक है, वो अगर वहाँ पे उसको वहाँ पे फिर आपने क्या किया, वहाँ पे अगर आपने इंजेक्शन बंद कर दिया या सरफेस पर से प्रेशर आपने कम करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो एक प्रेशर ऐसा आएगा वहाँ पे आपका फ्रैक्चर इनिशिएट ही नहीं होगा, आपको अपना प्रेशर ये वाले प्रेशर से ऑलवेज ऊपर रखना है, ठीक है, इतने प्रेशर पे, मान लो ये था 5000 psi, 5000 psi पे आपका कंप्लीटली फ्रैक्चर खुला रह रहा है, ठीक है, ओपन रहता है, बट ये क्लोजर प्रेशर क्या था वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था, मान के चलो ये है 4000 psi, सो इन टू ओपन दिस फ्रैक्चर, आपको ये फ्रैक्चर ओपन रखना है, तो आपका यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ पे आप जो वॉल्यूम डाल रहे हो वो प्रेशर आपको ऑलवेज 4000 से क्या रखना होगा, ज़्यादा रखना होगा, वरना आपका फ्रैक्चर जो क्रिएट हुआ है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पे सरफेस पे प्रेशर अप्लाई किया, यहाँ पे फ्लूइड डाल के इसको फ्रैक्चर करवाया 5000 psi जितना प्रेशर दे के, दिस क्वान्टिटी वी विल कैलकुलेट सून, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे ये वाला वॉल्यूम आपने यहाँ पे फिर से प्रेशर कम कर दिया तो ये फ्रैक्चर, ठीक है, जैसे ही आपका प्रेशर डाउन जाएगा 4000 psi से डाउन जाएगा तो ये क्लोज हो जाएगा, तो उसके लिए सेकंड स्टेज में आप क्या करोगे, सैंड को डालोगे, ये है आपका प्रोपन, ठीक है, सैंड नहीं बोल रहा हूँ, प्रोपन बोल रहा हूँ, ठीक है, प्रोपन एक ऐसा मटेरियल है, वो क्या करेगा, तो ये वाले जोन में क्या होगा, आपने जो फ्रैक्चर क्रिएट किया है यहाँ पे, मान लो ये एक फ्रैक्चर को मैं जूम दिखा रहा हूँ, तो इसको क्या होगा, यहाँ पे सैंड इस तरह से आ जाएगा और ये सैंड आ जाएगा यहाँ पे, दैट मीन्स प्रोपंट आ जाएगा, उसे ही प्रोपंट कहते हैं। तो आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू मेंटेन करके रखनी है। देखो यहाँ तक ये आपका क्या हुआ, सैंड आपने डाला हुआ है, तो ये सैंड क्या करेगा, सैंड का फंक्शन इतना है, प्रोपंट का फंक्शन इतना है कि ये वाली जो प्रोपंट है सेकंड स्टेज में, फर्स्ट स्टेज में आपने पेड वॉल्यूम डाल के क्या किया, फ्रैक्चर को इनिशियलाइज करवाया, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आपका प्रेशर डाउन हो रहा था, ठीक है, ये यहाँ पे अगर मान लो ये वाला पोर्शन नहीं होता तो ये सडनली इस तरह से डिक्रीज हो जाता, ठीक है, इस तरह से डिक्रीज हो जाता और आपका फ्रैक्चर क्या हो जाता, क्लोज हो जाता। तो उसीलिए आपने क्या किया, आपने सेकंड स्टेज में क्या किया, यहाँ पे जो क्लोजर प्रेशर है, ठीक है, क्या है, क्लोजर प्रेशर है, उसको आपको क्या करना है, वो वाला प्रेशर अचीव नहीं करवाना है। दैट मीन्स आपको अपना प्रेशर 4000 psi से क्या करना है, ज़्यादा रखना है ताकि आपके फ्रैक्चर क्लोज ना हो। उसके लिए आपने क्या इंसर्ट करवाया, ये सैंड पार्टिकल इंसर्ट करवाए। तो ये क्या करेगा, ये इसका जो ये रॉक हो गया, ठीक है, ये फ्रैक्चर जो क्रिएट हुआ है उस पर जो ओवरबर्डन आएगा, ठीक है, उस पर जो ओवरबर्डन आएगा, ठीक है, उस पर क्या आएगा, ओवरबर्डन आएगा। वो ओवरबर्डन को क्या करेगा, ये ओवरबर्डन आ रहा है तभी तो आपका क्या हो रहा है, सरफेस पे जो प्रेशर है, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, आपको ज़्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है। ये ओवरबर्डन है यहाँ पे, उसका रेजिस्ट करेगा ये प्रोपंट और उससे क्या होगा, आपका फ्रैक्चर खुला रहेगा, ठीक है। और जैसे ही, ठीक है, आपको पता चला कि भाई अब मैंने यहाँ तक प्रोडक्शन ले लिया, ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आपको अब आपने प्रोडक्शन ले लिया, उसके बाद आप उसको क्लोज कर दोगे। तो ऑब्वियसली क्या करोगे, सरफेस पे से जो प्रेशर है, ठीक है, आपने यहाँ से जो एक्स्ट्रा प्रेशर लेके रखा है उसको क्या करोगे, रिमूव करना स्टार्ट करोगे। तो आपका सरफेस प्रेशर जैसे रिमूव होगा, आपका सरफेस प्रेशर जैसे जैसे कम होगा और यहाँ पे जो प्रेशर था, ठीक है, ये वाले पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा था वो जब भी, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा था ये पॉइंट पे, वो क्या था आपको अब तो पता होगा, पी क्या हमने लिया था, पी हम लेते थे पी हाइड्रो वत्ता पी सरफेस पे से जो दिया है वो दोनों का समेशन था, ठीक है, दोनों का समेशन था। तो मान के चलो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर
और ये दोनों का समेशन था। तो अब जैसे जैसे ए पॉइंट पे आप जो प्रेशर इनिशिएट कर रहे हो, आप दे रहे हो, वो आपके क्लोजर प्रेशर से कम होगा, तो वो फ्रैक्चर वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस फॉर्मेशन breakdown pressure, and let's see how can you calculate this and what are the significant, what is the effect of the pore pressure or Poisson ratio on this all stuff. Okay, so that we will first of all let's cover that, and then but this is all about the chapter. We will see few property of the this propant. Okay, so let's start. So you know the vertical stress is given by the, okay, so you can read from here. Okay, अगर आपको पढ़ना है so you can read this chapter from here. हमने जो कर्व देखा वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, सो आई डोंट वांट टू रिपीट ऑल दो स्टफ। यू नो एटलीस्ट व्हाट इज द फ्रैक्चर, कौन से प्रेशर पे क्या एक्टिविटी होती है, सो ड्रिलिंग में कवर्ड है। सो लेट्स कैलकुलेट। फर्स्ट ऑफ ऑल you know sigma v. okay, this is nothing but vertical stress. okay, ये क्या है आपका vertical stress. okay, ये क्या है आपका vertical stress, लिख लो आप। sigma v क्या है, vertical stress, and this is nothing but what is this, either you can calculate from the, okay, 0.052 rho of the डेंसिटी ऑफ द ओवरऑल डेंसिटी, ठीक है, एवरेज डेंसिटी ऑफ द रॉक इनटू जिस डेप्थ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो डेप्थ या हाइट। ठीक है, सो दिस इज द वर्टिकल स्ट्रेस। ओके, ये क्या है आपका वर्टिकल स्ट्रेस है। ओके, ये क्या है वर्टिकल स्ट्रेस है, और यू कैन से ये वर्टिकल स्ट्रेस है, वही ये वाला कंपोनेंट ही आपका क्या होता है, ओवरबर्डन होता है। क्या होता है, ओवरबर्डन होता है। ठीक है, क्या होता है, ओवरबर्डन होता है, यही तो ओवरबर्डन होता है वर्टिकल स्ट्रेस का कंपोनेंट। तो ये ओवरऑल ओवरबर्डन लिखा है। सो अब आपको लिखना है, अब आपको क्या लिखना है, सेकंड स्टेज देखो, आपको लिखना है इफेक्टिव। ओके, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस, मैं डैश से डिनोट कर रहा हूँ, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। तो वो कितना होगा, ठीक है, वो कितना होगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू पोर प्रेशर। आपको क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है, आपको पोर प्रेशर रिमूव करना होगा, बट आप डायरेक्टली पोर प्रेशर रिमूव ना करो, बायोट ने कांस्टेंट दिया है। ठीक है, सो व्हेन यू कैलकुलेट द इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस, ये क्या होगा, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस, इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस। तो ये क्या होगा, ये आपका होगा, ये जो आपने सिग्मा भी निकाला उसमें से आप क्या करो, अल्फा इंटू पोर प्रेशर क्या करो, रिमूव करो। ठीक है, ये इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस होगा, वहाँ पे अल्फा। ठीक है, ये अल्फा और वो वाला अल्फा अलग है। ठीक है, आगे भी कहीं पे अल्फा मैंने लिया था, वो अल्फा अलग है, ये अल्फा होगा 0.7 फॉर दी सैंडस्टोन इलास्टिक कांस्टेंट है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, आपका इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका पोर प्रेशर पूरा वहाँ पे इफेक्टिव नहीं होगा, बट उसका कुछ परसेंटेज। ठीक है, ये इलास्टिक कांस्टेंट है जो दिया है बायोट्स ने। ठीक है, किसने दिया है, बायोट्स ने दिया है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड फॉर्मूला, यू कैन कैलकुलेट सिग्मा वी डैश। ओके, थर्ड नहीं, हाँ, ओके, थर्ड वन इज द इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस। ठीक है, सो ये क्या था, वर्टिकल स्ट्रेस था। ठीक है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में है। ठीक है, बट आपको पता है कि आपको कौन सा वाला स्ट्रेस इफेक्टिव देना है, तो मिनिमम अर्थ का हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस आपका फ्रैक्चर प्रेशर होता है, तो फॉर्मेशन ब्रेकडाउन भी आपका क्या होगा, अभी के लिए तो मिनिमम है, वो आपने क्या मान के चल लिया है, हॉरिजॉन्टल है। सो थर्ड इज द सिग्मा एच डैश। ठीक है, सो दिस इज द इफेक्टिव, देखो इफेक्टिव लिखा है, इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल ट्रेस इज इक्वल टू ये होगा पॉइजन रेशियो डिवाइडेड बाय 1 माइनस पॉइजन रेशियो
डिवाइडेड बाय 1 माइनस पॉइजन रेशियो इनटू ये वाला इफेक्टिव स्ट्रेस आपका आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द कन्वर्जन, ठीक है। ये इफेक्टिव वर्टिकल को क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल में दे रहा है, ठीक है। सो ये इफेक्टिव मिला, देन व्हाट यू कैन कैलकुलेट सिमिलरली। यहाँ पे अल्फा पोर प्रेशर क्या किया था, ओवरऑल में से माइनस किया था, ठीक है। तो मैं आई कैन राइट कि मिनिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। क्या लिखता हूँ, मिनिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ये वाली वैल्यू क्या है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेस है, दैट इज द इक्वल टू व्हाट, सिग्मा एच डैश, ओके। एच डैश यहाँ पे देखो, ये इस साइड चला जाए, ये वाला यहाँ पे आ जाए, तो क्या होता है, प्लस होता है अल्फा पीपी, ठीक है, पोर प्रेशर, ओके। सो ये हो गया मिनिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेस, ठीक है। ओवरऑल मिनिमम हॉरिजॉन्टल ट्रेस ये होगा। इसके बाद मैं आपको बात करूं, सिग्मा एच मीन होता था, वैसे ही एक आपका सिग्मा एच मैक्स भी होगा। दिस इज इक्वल टू दी सिग्मा एच मीन प्लस सिग्मा टेक्टोनिक, ठीक है। टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है तो उसकी वजह से आपका कोई स्ट्रेस यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है, तो वो आपका इंटरमीडिएट स्ट्रेस का वैल्यू देता था, डेट इज नथिंग बट सिग्मा एच मैक्स, ओके। एंड फाइनली ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, आपको देख के रखेगा, बट फिर भी याद रखो तो अच्छा है कि फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर इज इक्वल टू 3 टाइम्स सिग्मा मिनिमम एच, ओके, सिग्मा एच मिनिमम माइनस सिग्मा एच मैक्सिमम प्लस टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक माइनस द पोर प्रेशर, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइनली कैलकुलेट द एप फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर, ठीक है। साले टर्मिनोलॉजी भी ऐसे है कि शॉर्ट फॉर्म नहीं बोल सकते। चलो, ये क्या है आपका ये टेक्टोनिक यहाँ पे था, ये है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक, और ये अपना पोर प्रेशर, और ये दोनों हमने कैलकुलेट किया, सिग्मा एच मैक्स और सिग्मा एच मीन। देखो सिंपल है, अगर आपने अगला वाला ड्रिलिंग वाला अच्छे से देखा हुआ है, आपको ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन पता है, आपने स्किप नहीं किया है, ठीक है, स्किप किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो बैक लुक, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे 2 केस थे। चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, 2 केस थे, 3 केस थे वहाँ पे, बट मैं 2 ही ले रहा हूँ जो हमारे काम के हैं। मान के चलो ये अपना मैक्सिमम था, ठीक है, ये मैक्सिमम थी, मान के चलो ये मिनिमम थी, और ये सिग्मा मिनिमम थी, ठीक है। एक केस था नो टेक्टोनिक एक्टिविटी हो, तब कुछ ऐसा था कि एक वैल्यू होता था वो मैक्सिमम होता था, और बाकी दोनों ट्रेस की वैल्यू क्या होती थी, इक्वल होती थी। जब भी टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा, क्या होगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी होगा, उस टाइम पे क्या होता था, ये मैक्सिमम होता था, ये मिनिमम हो जाता था, और यहाँ पे एक इंटरमीडिएट आता था, दैट इज द सिग्मा इंटरमीडिएट, ऐसा कुछ आता था, यस। तो देखो अभी हमने क्या मान के चला है कि कुछ थोड़ी मोटी टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई है और ये इंटरमीडिएट दे रहा है, तो ये वाली वैल्यू क्यों इंटरमीडिएट हुई कि ये जो सिग्मा एच मिनिमम है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए तो उसमें क्या ऐड हुआ होगा, कुछ टेक्टोनिक की एक्टिविटी की वजह से इसमें कुछ स्ट्रेस एक्यूमुलेट हुआ होगा। तो क्या ये वही लिखा हुआ है, ऑब्वियसली वही लिखा हुआ है। सेकंड चीज़, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने पोर प्रेशर क्यों रिमूव किया, क्योंकि मुझे इफेक्टिव चाहिए, ठीक है। मैट्रिक्स पे कितना आ रहा है, ठीक है, ओवरबर्डन तो आपका लगने ही वाला है, ये क्या है, ओवरबर्डन ही तो है, तो ये कुछ नहीं लिखा है, सिग्मा वी इज इक्वल टू सिग्मा मैट्रिक्स प्लस पोर प्रेशर, ऐसा लिखते थे। तो पोर प्रेशर का मैंने α% लिया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ बोरोट ने ऐसा बायोट ने कुछ ऐसा बताया था, ठीक है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है बायोट, आगे भी आएगा हीट एक्सचेंजर में। सो यू कैन सी उसने ऐसा कुछ बताया, तो उसने α% ही काउंट किया हुआ है, और ये जो मैट्रिक्स स्ट्रेस है वो इफेक्टिव वैल्यू देगा, ठीक है। ये अब मैट्रिक्स का अपना स्ट्रेंथ होगा, ठीक है। ये वाला क्या है, मैट्रिक्स प्लस पोर प्रेशर दोनों की वजह से था, तो ऑब्वियसली आप पोर प्रेशर वाला पोर्शन बात कर दो तो खुद का मैट्रिक्स का जो ट्रेस होगा उसकी वजह से देगा, ठीक है। सो यू नो हमारे लिए काम का क्या है, देखो
एवरीथिंग इज द फंक्शन ऑफ द ईच वन। दैट मीन्स ये सिग्मा वी है वो किसका फंक्शन है, आपकी एवरेज डेंसिटी का, ठीक है। ये एवरेज डेंसिटी यू नो हाउ टू कैलकुलेट, रॉक प्लस फ्लूइड का एवरेज डेंसिटी है, ठीक है। सेकंड आपको बताऊं, ये जो इफेक्टिव है, इफेक्टिव वर्टिकल ट्रेस है, ठीक है, वो किसका है, ओवरबर्डन का फंक्शन है। हॉरिजॉन्टल है वो इसका सेकंड इफेक्टिव वर्टिकल का है, मिनिमम है वो भी इफेक्टिव का है, वो तो ऑब्वियसली जस्ट कन्वर्जन है तो, और ये भी है वो मिनिमम का है। सो सब क्या है, एक दूसरे के फंक्शन है, ठीक है। तो अब जब आप बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप ये जो हम अभी हमने ओपन की थी वो वाली आर्नोल्ड पढ़ रहे हो, ठीक है, आर्नोल्ड नहीं एलन पढ़ रहे हो, ठीक है, थॉमस और एलन। तो वहाँ पे जो काम की चीज़ें हैं, लेट्स आई वुड लाइक टू टॉक हियर। सो फर्स्ट चीज़ मैं आपको बता दूं, फर्स्ट चीज़ ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें कोई भी स्टेप कैलकुलेशन के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं इस पर क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सिंपली वैल्यू ही तो पुट करना है भाई, ठीक है। यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यू कैन यूज, सेकंड फॉर्मूला क्या था अपना, ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन दी डेंसिटी के यूनिट पे, ठीक है। आप डेंसिटी के जैसे जैसे यूनिट दिए हैं वैसे वैसे यू कैन यूज दी फॉर्मूला, ठीक है। यही था ना, ओके। यू कैन यूज एनी फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओवरबर्डन, कैलकुलेट करना पाए अब तो आना ही चाहिए, ठीक है। सो ये थी डिज़ाइन पर्पज ऑफ व्यू। अब इसमें से मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट देखो, लेट्स सी, फर्स्ट आपको ड्रिलिंग में भी बताया हुआ है बट चलो यहाँ पे भी बताता हूँ। तो एक देखो, अगर आपका रिजर्वायर प्रेशर, ठीक है, रिजर्वायर का प्रेशर इज इक्वल टू पोर प्रेशर है, मैं बोल रहा हूँ इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। पोर प्रेशर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आप यहाँ पे फ्रैक्चर करना चाहते हो और उसमें जो फ्लूइड है, ठीक है, जो फ्लूइड का प्रेशर है, ठीक है, जो फ्लूइड का प्रेशर है वो क्या कर रहा होगा, आपकी हेल्प कर रहा होगा फ्रैक्चर करने में। और ऐसा कोई भी इक्वेशन आता है तो आपको पहले इक्वेशन देख लेना है। चलो इक्वेशन से ही चलते हैं क्योंकि वही इजी वे है। आपको देखो ये वाला क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये वाला क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये वाला डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ वो अंडरस्टैंड करना है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपका जो रॉक की जो स्ट्रेस है, ठीक है, आपके रॉक के इनसाइड जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। वो रॉक की एनर्जी क्या हो रही है, आपकी कम हो रही है। यही तो इफेक्टिव स्ट्रेस है, ठीक है। ये क्या होता है, कम हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपका कम हो रहा है। सो ऑब्वियसली अगर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस कम हो रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स स्ट्रेस कम हो रहा है, सो आपको फ्रैक्चर करने के लिए कैसा प्रेशर अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे देखो ये वाली कम होगी, जब भी ये वाली कम होगी, ये कम होगी, यहाँ पे ये कम होगी तो ये कम होगी, सब वैल्यू कम होगी। तो ऑब्वियसली आपको कम प्रेशर अप्लाई करना होगा। कैसा प्रेशर अप्लाई करना होगा, कम प्रेशर, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। वैसे भी आप आइडेंटिफाई कर लो, आपको क्रिएट करना है फ्रैक्चर और उसमें पोरोसिटी अच्छी है तो आपको पोर प्रेशर ज़्यादा है तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको कम प्रेशर अप्लाई करना होगा। 100% पोरोसिटी तक तो ले जाना है आपको फ्रैक्चर में, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आपका फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर क्या होगा, कम होगा। सेकंड चीज़ आपको बता दूं, सेकंड इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसका वाइस वर्सा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड दिस, ओके। सेकंड चीज़ आपको जो एक्सप्लेन करना है, जो आपका पॉइजन रेशियो है, जो आपका पॉइजन रेशियो है, जब भी पॉइजन रेशियो आपका क्या है, 10:1 है, ये वाली वैल्यू जब भी 10:1 है, दैट मीन्स ये कब 10:1 होगी, जब v की वैल्यू क्या होगी, 0.5 से बड़ी होगी। कब, 0.5 से बड़ी होगी, क्योंकि 0.5 पे क्या है, 1 है, ठीक है, मीन्स हायर वैल्यू होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, 10:1 दैट मीन्स आपकी ये वाली वैल्यू क्या है, हायर है, या फिर ग्रेटर देन भी 1 हो सकता है। एक 1 से बड़ी है, ठीक है, ग्रेटर देन दी 1 है, दैट मीन्स आपका पॉइजन रेशियो हाई है। ये ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स v ग्रेटर देन 1 माइनस v, 2v ग्रेटर देन 1 और v क्या होगा, 1/1, ठीक है। सो ये क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो एट दैट टाइम यू कैन सी ये वाली वैल्यू
क्या होगा, यहाँ पे देखो ये वाला रिलेशन यू कैन अप्लाई, तो ये वाली वैल्यू बड़ी है तो ये आपकी वैल्यू क्या होगी, ये इसकी वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी ऑब्वियसली, या फिर इक्वल हो सकती है। ठीक है, सो इस केसेस में जब भी आपका पॉइजन रेशियो हाई है, ठीक है, पॉइजन रेशियो आपका क्या है, हाई है, तो ये पॉइजन रेशियो कहाँ पे हो सकता है, 0 to मोस्टली क्या होता है आपका 1 ही होता है। ओके, 0 to 1 या 0 to कितना होता है 2 होता है, पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं, वो सब जाने दो। जब भी आपका ये पॉइजन रेशियो का वैल्यू हाई होगा उस टाइम पे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आपका जो सिग्मा हॉरिजॉन्टल है इफेक्टिव दैट विल नियरली इक्वल टू सिग्मा वर्टिकल इफेक्टिव। ओके, अब ये दोनों वैल्यू इक्वल हो रही है, ठीक है, ये वाली वैल्यू अब आपका ये वैल्यू हाई है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हाई है, दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई हाई फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर। ओके, और सेकंड केस क्या होगा, इसमें ही पॉइजन रेशियो कम है, मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 0.7 पाई आपका पॉइजन रेशियो और यहाँ पे है 0.25। सो ये वाले केसेस में क्या होगा, आपका जो सिग्मा एच डैश है, आप यू कैन आइडेंटिफाई फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ओके, कोई कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होगा, ये लेस होगा। और अगर ये वाली वैल्यू लेस है, ठीक है, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू लेस है, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे क्या थी, ज़्यादा थी, यहाँ पे क्या है, कम है, तो यू हैव टू अप्लाई हाई फॉर्मेशन लो फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर। सो दिस टू MCQ कैन आस्क यू। ठीक है, अभी तीसरा भी है, रुको, अभी 2 से ख़त्म नहीं करना है, तीसरा भी अंडरस्टैंड करना है, तो ये आपको कुछ पता होना चाहिए। तो ये इसके लिए मैं एग्जांपल दूँ, ठीक है, इसके लिए मैं एग्जांपल दूँ। सो दिस इज द हायर इन केस ऑफ दिस शेल। ओके, अनकंसोलिडेटेड शेल है या फिर सैंडस्टोन है तब, और ये किसका एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है आपका कार्बोनेट का, ठीक है, कार्बोनेट का, ठीक है। सो टू फ्रैक्चर द कार्बोनेट, ये कुछ ऐसा बोल रहा है, ओके, टू फ्रैक्चर द कार्बोनेट यू नीड लो प्रेशर, बट टू फ्रैक्चर द शेल और सैंडस्टोन यू नीड हाई प्रेशर। ठीक है, चलो अब रटना नहीं है, तो आप एक चीज़ सोचो, जब कभी भी अनकंसोलिडेटेड होता था तो वहाँ पे नॉर्मली कैसा जोन होता है, एबनॉर्मल जोन होता है, क्या होता है, एबनॉर्मल जोन होता है, और वहाँ पे पोर प्रेशर भी क्या होता है, पोर प्रेशर भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। पोर प्रेशर ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी ये तो अलग चीज़ हो गई, ओके, इससे मत रिलेट करो। ओके, ये तो क्या बताया आपको कि वहाँ पे जो अनकंसोलिडेटेड फॉर्मेशन होगा, कंसोलिडेट के हिसाब से कंसोलिडेटेड फॉर्मेशन है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका पोर प्रेशर लो रहेगा क्योंकि पोरोसिटी लो रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, आपका सिग्मा वी की वैल्यू, आपको आप इससे सिग्मा वी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी सिग्मा वी क्या होगी, सिग्मा वी ओवरऑल जो आपका सिग्मा वी है दैट वैल्यू क्या हो जाएगी, ओवरऑल आपका सिग्मा वी है, ठीक है। स्ट्रेंथ कम होती है रोक में ऑब्वियसली, तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, ठीक है, आपको फॉर्मूले पे से भी पता चलेगा, तो सिग्मा वी डैश इसमें क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा, चलो मैं फिर से लिख के देता हूँ, बट ये इससे रिलेटेड नहीं है, ओके, इससे रिलेटेड नहीं है। ये क्या बता रहा है कि आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो इंडिकेट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वैसा इंडिकेट करवा रहा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और, क्योंकि ये पॉइजन रेशियो पे डिपेंडेड है। अनकंसोलिडेटेड के लिए पॉइजन रेशियो जो होता है आपका वो वेरी क्या होता है, हाई होता है। क्यों, क्योंकि आपको पता है इस तरह के ग्रेन हो जाते हैं, ठीक है, आपके ग्रेन क्या हो जाते हैं, इस तरह के हो जाते हैं, डेट मीन्स जो आपके पार्टिकल है वो डायामीटर ज़्यादा चेंज करते हैं रेदर देन दी लेंथ, ठीक है। आपका इसमें डेल डी बाई डी आएगा, वो ज़्यादा मिलेगा डेल एल एल बाई एल की वजह से, ठीक है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, लेंथ में चेंज उतना नहीं करते, ठीक है। ये वाले डायामीटर आप देखो, ये डायामीटर देखो, इसकी क्या होती है, जो पार्टिकल है वो क्या हो जाते हैं, पूरे हल्के बन जाते हैं, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, ठीक है, उसमें ज़्यादा मत जाओ, ठीक है। अगर आपको ये याद है, अगर ये आपको याद है देन इट्स ओके, आप याद रख लो, ठीक है। वो मैं बता रहा था, वो कुछ इस तरह की बात थी कि आपके पास दो है, पोर प्रेशर है, एक है आपका लो पोर प्रेशर है, ऐसा होता है आपके कंसोलिडेटेड में, ठीक है। तो उस टाइम पे आपका सिग्मा भी क्या होगा, ये थर्ड चीज़ लिख लो, तो उस टाइम पे आपका सिग्मा भी क्या होगा,
सिग्मा वी माइनस पोर प्रेशर है तो इज इक्वल टू सिग्मा वी डैश है। तो ऑब्वियसली आप देखो, अगर जब भी आपका पोर प्रेशर क्या है, लो है, जब भी आपका पोर प्रेशर लो है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए, हाई हो जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू हाई हो जाएगी। सेकंड केस देखो, पोर प्रेशर आपका हाई है। ठीक है, ये हमने देख लिया ना, यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये वाली ही वैल्यू मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको ये तो पता चलेगा कि ये कंसोलिडेटेड में ये वाला केस बनेगा। ठीक है, ये वाला केस कब होगा, कंसोलिडेटेड में, और पोर प्रेशर हाई होगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा वी माइनस पोर प्रेशर हो जाएगा आपका सिग्मा वी डैश। ये वाली वैल्यू अगर हाई है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, देख लो एक बार फिर से। कंसोलिडेटेड है तो ये वाली लो है तो ये वाला हाई होगा, यहाँ पे ये वाला हाई है तो ये वाला लो होगा। ठीक है, ओके। और ये था अपना पॉइजन रेशियो का रिलेशनशिप। ठीक है, ये क्या था, पॉइजन रेशियो का रिलेशनशिप। ओके, पॉइजन रेशियो के हिसाब से आप देख लो। ठीक है, ठीक है, ये कब हमने आइडेंटिफाई किया कि आपकी सिग्मा वी की वैल्यू तो दोनों केस में इक्वल है। ठीक है, फोर्थ चीज़ आपको बता दूं कि आपका जो क्लोजर प्रेशर है, ठीक है, आपका जो क्लोजर प्रेशर है दैट इज दी, आपका जो क्लोजर प्रेशर है, ठीक है, इफेक्टिवली जो क्लोज कर रहा है। ठीक है, अगर ये प्रेशर आपका ज़्यादा हुआ, ठीक है, ये वाला प्रेशर आपका ज़्यादा हुआ तो इजीली आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्चर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आपका फ्रैक्चर क्या हो जाएगा, इजीली क्लोज हो जाएगा। तो जो क्लोज करवा रहा है वो कौन कौन से प्रेशर है, ठीक है, तो वो प्रेशर एक तो आपका मैट्रिक का जो ट्रेस है, ठीक है, इफेक्टिव मैट्रिक ट्रेस है। ठीक है, इफेक्टिव मैट्रिक ट्रेस है, वो क्या करता है आपके, उसको क्या करता है, क्लोज करवाता है। ठीक है, और इसका रेजिस्ट कौन करता है, इसका रेजिस्ट करता है, यहाँ पे देखो, ओवरबर्डन होगा, क्या होगा, ओवरबर्डन होगा, वो क्या करेगा, आपके फ्रैक्चर को क्लोज करने की ट्राई करेगा। ओके, ये क्या करेगा, आपको क्लोज करने की ट्राई करेगा। ओवरबर्डन क्या करेगा, क्लोज करने की ट्राई करेगा। और उसमें से अगर मैं पोर प्रेशर हटा दूँ, ठीक है, पोर प्रेशर हटा दूँ तो ये आपको मिलेगा, ये इफेक्टिवली क्लोजर प्रेशर आपको मिलेगा। दैट इज द नथिंग बट दी मैट्रिक्स का ट्रेस। ठीक है, मैट्रिक्स का जो इफेक्टिव ट्रेस है, ठीक है, वही क्या होता है, आपका क्लोजर प्रेशर होता है। दैट मीन्स अगर आपको इतना प्रेशर उसको मिल गया, ठीक है, ये वाला अब ये वाला कुछ वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है, तो उसमें देखो जब हाई पोर प्रेशर है, ठीक है, वो जहाँ पे हाई पोर प्रेशर है, जहाँ कहीं पे भी हाई पोर प्रेशर है, या फिर मैं बोलूँ कि मैट्रिक्स की ट्रेस है वो क्या है, लेस है। ठीक है, मैट्रिक्स की ट्रेस है वो लेस है, तो वहाँ पे आपको कैसा प्रेशर अप्लाई करना होगा, क्लोज करने के लिए आपको क्या करना होगा, लेस प्रेशर। ठीक है, ये क्लोजर प्रेशर, एक मिनट रुको, क्लोजर प्रेशर इज द प्रेशर, ओके, द प्रेशर इन द फ्रैक्चर मस्ट एक्सिट एट द पोर प्रेशर। ओके, आपका क्या होना चाहिए, पोर प्रेशर को एग्जिट करना चाहिए, तभी आपका क्या होगा, ओके, तो तभी आपका क्या होगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं आएगा, रुको अभी भी, ये जो क्लोजर प्रेशर है, रुको, अपना क्लोज कौन कर रहा है, ठीक है, थोड़ा रुको। आज एक तो ऑलरेडी क्या है, सर्दी हुई है, और ऊपर से ये बच्चे आवाज़ बहुत करते हैं, हमारे यहाँ खेलते हैं तो, ठीक है, हमारी भी गोकुलधामी सोसाइटी है तारक भाई की तरह, तो कोई बोलता नहीं। तो देखो आपका ये फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है, ठीक है, वहाँ पे इसको आपको क्लोज कौन कर रहा है, इस पर क्लोज कौन डाल रहा है, आपका वर्टिकल वाला कंपोनेंट, दैट इज द नथिंग बट ओवरबर्डन प्रेशर। यस, तो ये ओवरबर्डन प्रेशर की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली ओवरबर्डन की प्रेशर की जो वैल्यू है वो क्या कर रहा है, इसको क्लोज कर रहा है।
बट हमने इसमें क्या डाला हुआ है, प्रोपन डाला हुआ है ऑब्वियसली, ठीक है। मान के चलो ओहो 4000 psi पे क्या होता है, आपका प्रेशर क्लोज हो जाता है, तो आपको अपना प्रेशर क्या रखना है, 4000 के अबो रखना है। और ये वाला क्या कौन सा प्रेशर है, हाइड्रो प्लस सरफेस का प्रेशर है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। चलो तो आपको अपना प्रेशर कितना रखना है, अबो दी 4000 रखना है। बट ये ओवरबर्डन लोड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे लोड आता है, ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, लोड आता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, दैट मीन्स यहाँ का जो पोर प्रेशर है वो क्या करेगा, इसके ओपोनेंट फोर्स लगाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। आपका पोर प्रेशर है वो क्या करेगा, इसके ओपोनेंट फोर्स लगाएगा। तो जितना ज़्यादा पोर प्रेशर होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पोर प्रेशर होगा, आपको क्या करना होगा, क्लोजर प्रेशर उतना ज़्यादा रखना होगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। जितना ज़्यादा पोर प्रेशर होगा उतना ये इसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसको क्लोज करने के लिए। तो जितना पोर प्रेशर ज़्यादा होगा उतना क्लोजर प्रेशर आपको ज़्यादा अप्लाई करना होगा। तो हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है कि ज़्यादा क्या हो, पोर प्रेशर हो, ठीक है, तभी तो बेनिफिशियल होगा, यस, तो भी तो क्लोजर प्रेशर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, क्लोजर प्रेशर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्टिवली क्लोज नहीं होगा, ठीक है, ये इफेक्टिवली क्लोज नहीं होगा। बट पोर प्रेशर क्या टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, नहीं, फ्लूइड प्रोड्यूस करोगे तो ये वाली वैल्यू डाउन हो जाएगी। अगर ये वाली वैल्यू डाउन हो रही है तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लोज करने के लिए जो प्रेशर रिक्वायर है वो वैल्यू कम होती चली जाएगी। इनिशियली मान के चलो 4000 psi पे क्लोज कर रहे थे, उसके बाद 3000 psi पे, ठीक है, ओनली 3000 psi पे ही ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। आपको अपनी वैल्यू क्या करनी होगी, क्लोजर प्रेशर से तो ज़्यादा ही रखनी है, ठीक है। तो आपका जो पोर प्रेशर था, जो ये क्लोजर प्रेशर को रेजिस्ट कर रहा था, ये कम हो रहा है, तो आपको उसमें क्या डालने पड़ेंगे, प्रोपन डालने पड़ेंगे जो इसका रेजिस्ट करे, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई आपके क्लोजर प्रेशर की, ठीक है। तो ये लास्ट लाइन थी, विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके। हायर दी पोर प्रेशर है तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा, क्लोजर प्रेशर को इंक्रीज करेगा, इजीली क्लोज नहीं होने देगा, ठीक है, क्योंकि आपका पोर में जो प्रेशर है वो क्या कर रहा है, ऊपर से आ रहा है, जो ओवरबर्डन लोड है उसको क्या कर रहा है, कम कर रहा है, ठीक है। ऐसे भी सोच सकते हो या फिर इक्वेशन से जाना है, ठीक है, ओवरबर्डन इज इक्वल टू मैट्रिक प्लस पोर प्रेशर होता है, ठीक है। जैसे जैसे ये पोर प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, मान लो ये फिक्स है आपका 10 ppg, तो जब पोर प्रेशर नहीं था तो ये कितनी थी, 10 ppg थी। बट जैसे जैसे आपका पोर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, पोर प्रेशर आएगा वो मान लो 7 था, ठीक है, ये 7 वैल्यू आई, ठीक है, तो ये 10 ना रह के कम हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये पोर प्रेशर जब आपका एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, इनिशियली 0 पोर प्रेशर था, उसके बाद ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू आएगी, ठीक है, तो ये क्या करेगी, ये क्या करेगी, जो ओवरबर्डन प्रेशर ऊपर से अप्लाई हो रहा था उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है, उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, ओके, उसको क्या कर देगी, कम कर देगी, ठीक है, कम कर देगी। दैट मीन्स कि अब जो आपको समझ, अब जो ओवरबर्डन प्रेशर वहाँ पे अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, वो पहले से कम हो रहा होगा ऑब्वियसली। अब जो वहाँ पे ओवरबर्डन अप्लाई हो रहा होगा वो पहले से कम हो रहा होगा। तो ओवरबर्डन प्रेशर अगर आपका कम हुआ, ठीक है, ओवरबर्डन अगर आपका कम हुआ तो दैट मीन्स यहाँ पे जो ये वाला फोर्स लग रहा है जो इसको क्लोज करवा रहा है वो क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो इसको क्लोजर प्रेशर मिल रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे जो उसको क्लोजर प्रेशर मिल रहा होगा वो क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। दैट मीन्स जब भी पोर प्रेशर की कुछ वैल्यू मिल रही है, ठीक है, पोर प्रेशर जब आ रहा है, ठीक है, ओके, सो जो आपका जब भी आपका पोर प्रेशर आ रहा है, ठीक है, आपका पोर प्रेशर आ रहा है तो ओवरबर्डन है वो एवरेज वैल्यू है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। जो पोर प्रेशर जब भी आपका आ रहा है, ठीक है, ये पोर प्रेशर की वैल्यू जब भी आपको मिल रही है, जब वहाँ पे पोर प्रेशर प्रेजेंट है तो एवरेज वैल्यू आपकी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है, एवरेज वैल्यू आपकी कम हो रही है। दैट मीन्स यहाँ से जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है जो ये फ्रैक्चर को क्लोज करता है वो
कम हो रहा है। दैट मीन्स जो यहाँ पे इसका क्लोजर प्रेशर जो इसको मिलना चाहिए था उससे क्या मिलता है, आपका क्लोजर प्रेशर क्या होता है, ठीक है, आपको जो इसको क्लोज करने वाला जो इफेक्टिव प्रेशर था वो वैल्यू कम हो रही है। दैट मीन्स जब कहीं पे भी यहाँ पे पोर प्रेशर आएगा, ठीक है, तो अगर आपको ये फ्रैक्चर को अगर ये ओवरबर्डन के हेल्प से कम करना है तो आपका क्लोजर प्रेशर ऑब्वियसली आपको बढ़ाना पड़ेगा, तो ही वो फ्रैक्चर क्लोज होगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो ये वाला लास्ट आपको याद रखना है, ठीक है। सो ये वाली लाइन आपको याद रखनी है। तो ये दिस आर दी फोर्थ, ओके, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टली सोचना चाहो तो भी सोच सकते हो कि जो पोर प्रेशर है वो फ्रैक्चर को क्या कर रहा है, ओपन रख रहा है। जो अपना पोर प्रेशर है वो फ्रैक्चर को खुला रखने में हेल्प कर रहा है। तो ऑब्वियसली आपका क्लोजर का प्रेशर, आपको फ्रैक्चर को क्लोज करना है तो वो वैल्यू बढ़ानी होगी, ठीक है, ठीक है, बढ़ानी ही होगी। दैट मीन्स कि ओवरबर्डन है, ये क्या कर रहा है, ये आपके फ्रैक्चर को क्लोज करवा रहा है, ये आपके फ्रैक्चर को क्लोज करवा रहा है। और यहाँ पे मैट्रिक्स का ट्रेस होगा प्लस पोर प्रेशर होगा, ये दो वैल्यू होगी। तो जब कहीं पे भी ये वैल्यू आएगी, जब ये वैल्यू नहीं थी तो ये दोनों इक्वल थे, ठीक है। दैट मीन्स ये 10 था तो यही भी 10 था। बट आपको पता है कि पोर की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, 8 या 7 इतनी। तो ये एवरेज वैल्यू है, ये जो एवरेज वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू अब 10 ना रह के 10 से कम होगी। तो जब भी आपका पोर प्रेशर वहाँ पे आएगा तो ठीक है, जहाँ पे भी आपका पोर प्रेशर वहाँ पे आएगा, दैट मीन्स जो फ्लूइड होगा तो उसके कुछ परसेंटेज होगा, तो ये एवरेज वैल्यू है, ठीक है। ये एवरेज वैल्यू आपको पता है कि ये 10 ना रहते हुए अब ये 10 नहीं होगी, इधर 9 होगी या इन बिटवीन 8 to 10 होगी, तो ये कम हो रही है। तो आपका जो इफेक्टिव जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था, जो इसको क्लोज करवा रहा था, वो कम हो चुका है। अगर वो कम हो चुका है तो फिर ये इजीली क्लोज नहीं होगा। दैट मीन्स आपको अगर इसको क्लोज करना है, ये वाले फ्रैक्चर को क्लोज करना है, तो ऊपर से कुछ और ज़्यादा वैल्यू एज अ क्लोजर प्रेशर आपको लगानी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, यू कैन अंडरस्टैंड। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट फॉर दिस, ओके, ये इम्पोर्टेंट है, ओके। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट, ओके, आपको याद रखना है। हायर द पॉइजन रेशियो, दैट मीन्स ये टेंस करेगा इसको और आपका फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर हाई लगेगा, जैसे कि अनकंसोलिडेटेड सैंड है, तो ठीक है, उसमें आपको आपका ये सब बात कर रहे हैं। एंड वी हैव अज्यूम दैट वी आर गोइंग टू डू वर्टिकल फ्रैक्चर, ओके। हम जो सारी बात कर रहे हैं वो वर्टिकल फ्रैक्चर क्रिएट करने के सेंस में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो ओके, सो एक चीज़ याद रखना, कार्बोनेट क्या होता है, कंसोलिडेटेड होता है, ठीक है, कंसोलिडेटेड। इसकी स्ट्रेंथ भी हाई है, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ भी हाई है। बट स्ट्रेंथ हाई है उसका मीनिंग ये तो नहीं कि उसके हॉरिजॉन्टल का स्ट्रेस है वो कम है, ठीक है। उसी की वजह से इसमें लो फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर लग रहा है, क्योंकि हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे हमें कमेंट करना है, ठीक है। सो ओवरऑल वैल्यू तो आपको यही देगा, ठीक है, ठीक है। तो ये वाली ओवरऑल वैल्यू है, बट ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 सेंटेंसेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, दैट वी हैव सीन, ओके। इसके अलावा व्हाट इज हियर, वी नो फॉर्मेशन डायमेंशनलेस कंडक्टिविटी विच वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, ओके। ये क्या इंडिकेट कर रहा था, डायमेंशनलेस फ्रैक्चर कंडक्टिविटी इज द फॉर्मेशन कंडक्टिविटी फ्रैक्चर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय फॉर्मेशन कंडक्टिविटी, ठीक है। और ये क्या होता था आपको पता हो तो, ठीक है, जो भी था यू कैन आइडेंटिफाई, ओके। ये वाला आपका वर्टिकल फ्रैक्चर है, तो यहाँ पे जो फ्लो आएगा वो विथ पे आएगा, तो यहाँ पे विथ और के ऑफ द फ्रैक्चर डिवाइडेड बाय द व्हाट, काका की जाना कोई बात नहीं, चलो ऐसा तो चलता रहता है। यहाँ पे जो ये हाफ लेंथ होती थी, सो दैट इज द हाफ लेंथ इनटू फॉर्मेशन की, ठीक है। ये है फ्रैक्चर की और ये है फॉर्मेशन की, ठीक है। सो ये ऐसे ही होता था ना, ओके, ऑब्वियसली यस ऐसे ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो।
सो ये आपको पता है, ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा लीक ऑफ प्रेशर, सरफेस पे से कितना प्रेशर अप्लाई करना होगा वो भी हमने देख लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फ्रैक्चरिंग, ओके। ये था अपना फ्रैक्चरिंग, ठीक है। अब बात करते हैं जो प्रोपेंट है, ठीक है। जो प्रोपेंट है वो क्या होते हैं, तो वो सिंपली आपको बताता हूँ, आइदर सैंड और सिरामिक जो भी सूटेबल है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ, ठीक है, हाई स्ट्रेंथ, लो स्ट्रेंथ, इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन दी प्रेशर रेटिंग, ओके। 6000 है तो हम लो स्ट्रेंथ वाला, 10,000 है तो इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ वाला, 20,000 है तो हाई स्ट्रेंथ वाला प्रोपेंट यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो मोस्टली सैंड और सिरामिक मटेरियल होता है। इसके अलावा जो फ्रैक्चर फ्लूइड हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, फ्रैक्चर फ्लूइड डिज़ाइन करते हैं, जो भी फ्रैक्चर का फ्लूइड है, तो हमें पता है कि इसको विस्क्यूसिटी अगर इसकी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपके फ्रैक्चर की विड्थ क्या होगी, विथ ज़्यादा होगी। एंड यू नो डायमेंशनलेस कंडक्टिविटी विथ पे ज़्यादा प्रोपोर्शनल होती है, तो विथ आपको क्या रखनी है, ज़्यादा रखनी है, तो योर डेंसिटी शुड बी हायर फॉर दिस पर्पज़ ओनली, ठीक है। इसके अलावा इस फ्लूइड जो यूज़ करेंगे, ठीक है, उसमें आपको सॉलिड कंट्रोल करना है, ठीक है। दैट मीन्स आपको सैंड जो आप डाल रहे हो, ठीक है, सैंड जो डाल रहे हो तो ये सैंड है, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम और रेमेडीज़ की बात कर रहा हूँ, छोटे मोटे, ठीक है, बुक में बहुत ही बकवास है। तो ये जो आप सैंड डाल रहे हो वो सैंड, ठीक है, वो सेपरेट नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, सेपरेट नहीं होनी चाहिए, वरना क्या होगा, पूरा का पूरा एक वो फ्लोएबिलिटी लॉस कर देगा, पार्टिकल सेटल डाउन नहीं होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो सैंड अगर सेपरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली वो बॉटम पे फ्रिक्शन प्रेशर करेगा, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। और वन मोर थिंग, सैंड की कंसंट्रेशन आपको अच्छी खासी रखनी है ताकि वो हेड जो क्रिएट होगा, हाइड्रोस्टैटिक हेड, वो उसको भी कंट्रोल करे, ठीक है। क्योंकि अगर आपका डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, सो ऑब्वियसली आपका फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है, फ्रिक्शन भी आपको ओवरटेक करना है, ठीक है। इसके अलावा ओके, सो दीज आर दी आपके लास्ट पोर्शन में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, प्रोपेंट के बारे में तो उतना नहीं है। इसके अलावा आपका फ्रैक्चर के मॉडल अवेलेबल है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो मॉडल कुछ काम के नहीं है, ठीक है, बट चलो 3 मॉडल है, ठीक है, KGD एंड PKN मॉडल, ठीक है। PKN मॉडल और सेकंड वन इज दी KGD मॉडल, यू कैन फाइंड इट इन दी दैट कैलकुलेशन वाले फॉर्मूला में। और थर्ड वन इज दी, 0th वन इज दी रेडियल फ्रैक्चर मॉडल, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने स्टडी किया और अपने अपने मॉडल दिए हैं, ठीक है, कि आपको विथ क्या रखनी है, क्या विथ कौन सी आपकी रखनी है, ठीक है। तो उसके फॉर्मूला अवेलेबल है, मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, तो यू कैन स्कीप ऑल दोज फॉर्मूला, ठीक है। बट इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि आप विथ और लेंथ इक्वल रखो, इन्होंने बोला था विथ और लेंथ इक्वल रखो, इन्होंने बोला था हायर दी विथ रखो, ठीक है, इन्होंने बोला हायर दी विथ रखो, और इन्होंने बोला हायर दी, ओके। ये रुको, अभी ये KGD ऊपर आएगा और ये PKN बिलो आएगा। दैट मीन्स कि KGD वाले भाई साहब ने ये बोला कि आप हायर दी विथ रखो, दैट विल मोर बेनिफिशियल टू यू, ठीक है। और ये PKN वालों ने इतना बोला कि आप लोअर दी विथ रखो और हायर दी लेंथ रखो, दैट विल बेनिफिशियल टू यू। और इन्होंने तो बोल दिया दोनों इक्वल रखो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस, ओके, व्हाट एज पर योर, ओके, इन्होंने एक विथ निकालने का फॉर्मूला दिया, इन्होंने भी एक विथ निकालने का फॉर्मूला दिया। यू कैन यूज दैट टू कैलकुलेट दी विथ ऑफ दैट पर्टिकुलर, ओके, दैट पर्टिकुलर फ्रैक्चरिंग ऑपरेशन। सो ये चीज़ थी अपनी फ्रैक्चरिंग, ओके। अब आपका इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखनी है, प्रिकॉशन क्या रखने हैं, दैट इज़ गिवन इन योर बुक, ओके। वो अब मैं नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो सब आप चाहो तो पढ़ लो बुक में से, कुछ काम के नहीं है, ठीक है। उसमें बस ऐसे प्रिकॉशन होंगे कि भाई आपका वहाँ पे कोरोजन ना हो, ठीक है, बैक्टीरिया का अटैक ना हो, ये सारी चीज़ें होगी, ठीक है। फिर आपका फॉर्मेशन डैमेज हो सकता है, ठीक है, तो उसमें भी आपका यही किया होगा कि आपके जो छोटे पार्टिकल है, जो आपने प्रोपेंट डाला है, वो वहाँ पे उसमें फाइंस ना हो, वो अच्छे से सीव किया हो, ठीक है, उसको मिक्स किया गया हो फ्लूइड में अच्छे से,
ताकि परमेबिलिटी और वेटेबिलिटी पे कोई इफेक्ट ना डाले, ठीक है। Okay, so let's see in the book. I would like to move. I would like to take you to the journey of the book. So चलो कुछ बता है तो देख लेते हैं. Okay, so that model formula you can find in the another book. वो फॉर्मूला वाली बुक है उसमें, ठीक है. So in this first portion, okay, ये सब तो आपको बता दिया, ठीक है. In the starting of the chapter, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट में देख लेते हैं. तो इन दी स्टार्टिंग यू नो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है, ये सब आप पढ़ो, ठीक है. पढ़ना है तो पढ़ो, नोवेल की तरह पढ़ लो. यू नो ऑल थिंग्स इन दी ड्रिलिंग, ये सब आपने ड्रिलिंग में कवर किया हुआ है कहाँ तक. और ये सब जो डिज़ाइन थी, ठीक है, वो मोस्टली मैंने यहाँ पे आपको बता दी. और कुछ उसमें ज़्यादा डीप में मत जाओ, ठीक है. दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट. ओके, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दे के रखा है. यस, ओके. फ्रैक्चर विथ का फॉर्मूला है कि प्रोपोगेशन प्रेशर माइनस क्लोजर प्रेशर डिवाइडेड बाय यंग मॉड्यूल, ठीक है. दिस इज द विथ ऑफ द दैट फ्रैक्चर. ओके, ये ध्यान में रखो. इससे छोटे छोटे फॉर्मूला से क्वेश्चन आ सकते हैं. बट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, वहाँ पे 3 मॉडल डिज़ाइन है, वो तीनों ने विथ का कुछ अलग सा फॉर्मूला दिया है. सो देयर इज़ नो एनी फिक्स फॉर्मूला. इट्स टोटली डिपेंड ऑन विच मॉडल you want to fracture the well. Okay, then this curve, okay, this curve you know already. Okay, this curve is nothing देखो, ये अब आपने फ्लूइड इंजेक्ट करवाया है उसके सेंस में है, और आपने यहाँ पे सरफेस पे से प्रेशर भी दिया है. तो यू हैव टू, ये ट्यूबुलर फ्रिक्शन प्रेशर लॉस वी विल सी व्हेन वी विल सी नोडल एनालिसिस. ओके, ऑब्वियसली फ्रिक्शन इन्वर्स डायरेक्शन में होगा. तो ये हमने दिया तो इतने तक का यहाँ का दिया था, पर ये डाउन क्यों हो रहा है, फ्रिक्शन इसको नहीं उतना रहने दे पा रहा है, उसी की वजह से. तो ठीक है, तो ये नेट फ्रैक्चर प्रेशर आपका ये वाला होगा, ठीक है. आपको ये वाली वैल्यू से अपनी वैल्यू प्रोपोगेशन प्रेशर है, ठीक है, ये प्रोपोगेशन है, और ये क्लोजिंग प्रेशर है. उसके अबो आपको क्या करना है, अपना फ्रैक्चर का प्रेशर रखना है, ठीक है. सो दिस यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, फिर यहाँ पे मेथड दी गई है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द फ्रैक्चर प्रेशर. तो अगेन, ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे मेथड है. ओके, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सटिन मेथड है. सेकंड वन इज द पंप इन फ्लो बैक मेथड है, एंड थर्ड वन इज द स्टेप रेट इंजेक्शन. सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द वेल टेस्टिंग. ओके, आगे बात करूँ, फ्लो इन, पंप इन, फ्लो बैक मेथड. तो टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग फॉर्मेशन क्लोजर प्रेशर वेयर फ्रैक्चर क्लोजर टाइम माइट अदरवाइज बी वेरी लॉन्ग. ओके, जहाँ कहीं पे भी, ठीक है. अब देखो, जब कहीं पे भी आप शट इन कर रहे हो, ठीक है, तो व्हाट यू आर गोइंग टू आइडेंटिफाई योर फ्रैक्चर क्लोजिंग प्रेशर. ओके, आपको फ्रैक्चर का क्लोजिंग प्रेशर पता है, तो आपको वही तो चाहिए, ठीक है. तो व्हेन एवर यू आर शटिंग द वेल, आपने क्या किया, यहाँ पे ये वाले जोन में आप प्रोडक्शन ले रहे थे, ठीक है. क्या कर रहे थे, प्रोडक्शन ले रहे थे, और आपने वेल को शट कर दिया. तो यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ पे अब आपका जो फ्लूइड था, ठीक है, वो क्या करेगा, ये वाले फ्रैक्चर को क्लोज करने की ट्राई करेगा, ऑब्वियसली. ओके, सो अब क्या होगा, ओके, अब क्या होगा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे आपका प्रेशर कैसे 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 आपने सरफेस पे से प्रेशर अप्लाई करना बंद कर दिया. तो यहाँ पे जो हाइड्रोस्टेटिक फ्लूइड होगा वो इनिशियली क्या होगा, इसके अंदर लॉस्ट हो रहा होगा, ठीक है. आपने क्या किया, शट इन किया इंस्टेंटेनियस, ठीक है. आप यहाँ से
कुछ प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, आपने यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट किया, आपने प्रोड्यूस लिया, फिर सडन सटिन किया, तो इनिशियली क्या होगा, आपका फ्लूइड इसमें जा रहा होगा क्योंकि वहाँ पे फ्रैक्चर है। बट जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे ये फ्रैक्चर का क्लोज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि सटिन किया तो यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक हेड और सरफेस प्रेशर था, वो तो अब अप्लाई नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्चर अब ओपन नहीं रह पाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो क्लोज हो रहा है, ठीक है, वी विल सी इन फिगर 8.7। ओके, देखो क्या इफेक्ट आएगा। ओके, ये तो ठीक है। तो जब भी आपने यहाँ से, ठीक है, ये कुछ नहीं है भाई, ये लिक ऑफ टेस्ट ही है, बट डिफरेंट लैंग्वेज में लिख के दिया है। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपने इनिशियली फ्रैक्चर करवाया, फ्रैक्चर किया, ठीक है, वो कैसे पता चलेगा आपको, ठीक है, आपने वो ग्राफ ऑब्टेन किया, उसके बाद आपने क्या किया, वेल को शट इन कर दिया, तो शट इन किया, ठीक है। सो ये वाला कर्व हमने देखा था लिक ऑफ टेस्ट में, ठीक है, लिक ऑफ टेस्ट में। तो इनिशियली आपने क्या किया, इंजेक्ट किया, ठीक है, इनिशियली आपने इंजेक्ट किया, ठीक है, और आपको पता चला कि जैसे ही आपका फ्लूइड लॉस्ट होगा, ठीक है, वैसे ही आपका सरफेस का प्रेशर थोड़ा डाउन जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका फ्लूइड क्या हुआ होगा, जहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट हुआ वहाँ पे लॉस्ट हुआ होगा, तो ऑब्वियसली आपको जो ये सरफेस पे प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो ये ऐसे आएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे पूरा ब्रेक डाउन हो रहा है। उसके बाद आप क्या करोगे, वेल को शट इन कर दोगे, तो आपका ये प्रेशर डाउन होगा, डाउन होगा, डाउन होगा, और जब कहीं पे भी आपका फ्रैक्चर क्लोज हो जाएगा, ठीक है, तो सरफेस प्रेशर आपका 0 की ओर टेंस करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने वेल को तो शट इन कर दिया है, और आपका फ्लूइड जो था वो क्या हो रहा होगा, फ्रैक्चर में अब लॉस्ट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। अब आपका जो फ्लूइड है वो लॉस्ट नहीं हो रहा होगा, तो अब ये कांस्टेंट वैल्यू की ओर टेंस कर देगा, ठीक है। क्या कर देगा, कांस्टेंट वैल्यू की ओर टेंस कर देगा। तो ये सी चीज़ थी, लिक ऑफ टेस्ट ही है, ये कुछ अलग नहीं है। फॉर्मेशन इंटीग्रिटी टेस्ट वी हैव ऑलरेडी सीन, बट इसमें जो क्लोजर टाइम था वो वेरी हाई होगा। जब भी आपका क्लोजर टाइम है अगर वो वेरी हाई है, ओके, जब भी आपका क्लोजर टाइम वेरी हाई है, तो ये कर्व आपको इतनी इजीली नहीं मिलेगा, बहुत टाइम तक राह देखनी होगी। तो वहाँ पे आप यू कैन यूज़ दी पंप इन फ्लो बैक मेथड, जहाँ पे आपका क्लोजर टाइम क्या है, वेरी हाई है, ठीक है। दैट मीन्स आपको ये वाला कर्व, ठीक है, ये देखो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये बहुत ही लॉन्ग जा रहा है, तो आप कौन सा दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हो। और ये वाले मेथड में कुछ नहीं होता, इसमें आप चौक है, ठीक है, आपका क्या है, चौक है, तो चौक को आप क्या करोगे, कांस्टेंट फ्लो बैक रेट से इंजेक्ट कर दोगे, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है, आप यहाँ तक पहुँच गए, बट अब ये जो क्लोजर प्रेशर है आपका, ये वाला प्रेशर आपका अचीव नहीं हो रहा है, तो आप क्या करोगे, चौक की हेल्प से थोड़ा बहुत फ्लूइड इंजेक्ट करवा दोगे, ठीक है। दैट मीन्स आप टाइम को क्या करोगे, स्किप कर दोगे, ठीक है। आप थोड़ा बहुत फ्लूइड इंजेक्ट करवा दो कांस्टेंट फ्लो रेट से, और तभी आपको जब आपका फ्लूइड इंजेक्ट होना बंद हो जाए, ठीक है, वो आप टाइम को स्किप कर रहे हो, कुछ और नहीं है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आपने वेल को शट इन किया, तो आपका इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर क्या हो रहा होगा, वहाँ पे बिल्ड हो रहा होगा, ठीक है। इनिशियल रिजर्वायर प्रेशर फिर से आने लगेगा, ठीक है। तो रिजर्वायर प्रेशर माइनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज दी सरफेस प्रेशर होगा। ऑब्वियसली आपका रिजर्वायर प्रेशर माइनस आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ही आपको सरफेस की वैल्यू दे रहा होगा। आपने इनिशियली फ्रैक्चर किया, ठीक है, दैट मीन्स आपने ये रिजर्वायर प्रेशर से भी ज़्यादा वैल्यू लगा के आपने फ्रैक्चर किया। उसके बाद आपने क्या किया, उस वेल को फ्रैक्चर हो गया, उसके बाद आपने वेल को शट इन कर दिया, वेल को शट इन कर दिया, तो ये रिजर्वायर प्रेशर फिर से बिल्ट हो रहा होगा। ये वाला प्रेशर अब आपके हाइड्रोस्टेटिक वैल्यू से ज़्यादा हो रहा होगा, ज़्यादा हो रहा होगा, तो ये फ्रैक्चर को क्या कर रहा होगा, ऑब्वियसली क्लोज करवा रहा होगा, ठीक है। वहाँ पे फ्रैक्चर क्या हो रहे होंगे, क्लोज हो रहे होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अब आपका फ्लूइड आ रहा होगा, ठीक है, दूसरे हर जगह से वहाँ पे जो फ्लूइड फ्रैक्चर किया, ठीक है, उस पर ओवरबर्डन हैवी हो रहा होगा, क्योंकि अब आपने सरफेस से कोई फ्रैक्चर प्रेशर अप्लाई नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे जो ओवरबर्डन उसको क्लोज करवा रहा होगा वो टाइम बहुत ज़्यादा होगा, वो टाइम बहुत ज़्यादा होगा। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन प्रोड्यूस द फ्लूइड, ओके। अगर आप रिजर्वायर प्रेशर कम कर दो, वहाँ पे से फ्लूइड को हटा लो, ठीक है। आप क्या कर लो, चौक की हेल्प से थोड़ा फ्लो ले लो, ठीक है, आप थोड़ा फ्लो रेट ले लो, तो वहाँ पे रिजर्वायर प्रेशर क्या होगा, पोर प्रेशर कम होगा। और हमें पता है पोर प्रेशर जब भी कम होता है तो वहाँ पे क्लोजर प्रेशर बढ़ जाएगा, इफेक्टिव क्लोजर प्रेशर उस पर,
ठीक है। पोर प्रेशर कम करना है, दैट मीन्स आप वहाँ पे जो वहाँ पे क्लोजर प्रेशर उसको देना था, ठीक है। पहले केस में 4000 psi देना था, तो आपने अगर पोर प्रेशर ये जो उसको रेजिस्ट कर रहा था वो फ्लूइड को थोड़ा प्रोड्यूस कर लिया, दैट मीन्स आपने पोर प्रेशर थोड़े टाइम के लिए रिड्यूस कर दिया। तो अब जो क्लोजर प्रेशर 4000 ना देना पड़ रहा था वो अब 3000 ही देना पड़ेगा। अगर ये 3000 ही देना पड़ेगा तो ऑब्वियसली आपका जो अब फ्रैक्चर जो लंबा टाइम ले रहे थे क्लोज होने में वो कम प्रेशर की वैल्यू देनी पड़ रही है, दैट मीन्स 3000 तो वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, तो वो टाइम कम करके सडनली क्लोज हो जाएगा और आपको अपना इनिशियल फेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी है, आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। ये 3 मेथड है, थर्ड वन यू नो। नेक्स्ट ये प्रोपेंट की कहानी है, दैट इज़ नॉट अगेन आई एम फोर्सिंग टू रीड दिस ऑल, ठीक है। थोड़ी बहुत अब देखो कौन कौन से इक्विपमेंट हो यूज़ हो गया हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करने के लिए, लेट्स सी दोज ऑल, ओके। सो देखो ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। ये फ्लूइड के बारे में बताया हुआ है, यू कैन यूज नॉर्मली क्रूड ऑयल फ्लूइड और जेल्ड वाटर फ्लूइड, यू नो ऑल दी फ्लूइड, ओके। कहाँ पे ऑयल बेस्ड मड नहीं यूज होता मोस्टली, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत इस टाइप का वाटर, ठीक है। मड आपका प्योर वाटर है तो उसे ही तो मड तो कह ही सकते हैं, ठीक है। उसमें एडिटिव्स आप अच्छे खासे मिक्स करोगे, ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ाओगे, ठीक है। तो ये सब आपको पता है, हर एक फ्लूइड की लिमिटेशन भी पता है। तो दीज आर दी थोड़े बहुत फ्लूइड के नाम लिख के दिए हुए हैं, दैट यू कैन यूज एज दी फ्रैक्चर फ्लूइड, ठीक है। तो फर्स्ट चीज़ इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या बताया, विस्कोसिटी शुड बी सफिशिएंट ताकि आपका विथ अच्छा बने। सेकंड चीज़ सैंड है वो आउट नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये सेकंड चीज़। 10 मिनट उसमें जेल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। थर्ड चीज़ विस्कोसिटी बढ़ानी है, ठीक है। विस्कोसिटी जब भी आपकी बढ़ानी है तो ये जब इंजेक्ट हो, ठीक है, जब भी इंजेक्ट हो तब इसकी विस्कोसिटी हाई है तो चलेगा, बट जब भी वेल को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वहाँ पे अगर इमल्शन बन गया, ठीक है, तो उस टाइम पे हमें इमल्शन नहीं चाहिए, ठीक है। जब ये प्रोड्यूस्ड हो रहा हो तब हमें इमल्शन नहीं चाहिए, वरना आपको पता है नहीं होगा अच्छा। बट जब भी इंजेक्ट हो रहा है तो उसका विस्कोसिटी अच्छा होना चाहिए। गेट का क्वेश्चन है, गेट 2020 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द वर्क ओवर फ्लूइड, ठीक है। तो ये एक टाइप की वर्क ओवर एक्टिविटी है, तो आपको पता चलना चाहिए कि इंजेक्ट कर रहे हो तब विस्कोसिटी अच्छी हो, तो ये जो कैरी हो रहा है, ठीक है, वो अच्छा खासा जेल स्ट्रेंथ यानी कि सेटल डाउन नहीं होगा, सस्पेंशन में रहेगा। बट जब फ्लूइड वापस प्रोड्यूस्ड हो रहा है वहाँ पे अगर वो इमल्शन ब्रेक नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, दिक्कत करेगा, ठीक है, आपकी ऑयल की रिलेटिव परमेबिलिटी को कम कर देगा। तो जब भी प्रोड्यूस कर रहे हो तब उसकी हाई विस्कोसिटी इज नॉट द फंक्शन ऑफ द वर्क ओवर फ्लूइड, ठीक है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं और उसके बेसिस पे आपको नाम दिए हुए हैं, यू कैन यूज़, ठीक है। नेक्स्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट यू कैन रिमेंबर ऑल दोज नेम, ठीक है, कौन कौन से फ्लूइड थे दैट यू कैन यूज़। इसके अलावा सरफेस पे क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए दैट वी विल सी, ठीक है। ये सब हमने किया हुआ है, ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन वी हैव कवर्ड इन द ड्रिलिंग, वही है, मॉडल है। और फिर ये इंडिविजुअल कंपोनेंट की प्रॉपर्टी इन्होंने एक्सप्लेन की हुई है। सो देखो आपकी सरफेस पे कौन सी फैसिलिटी रहेगी, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज द फ्लो डायग्राम। आपकी सरफेस पे क्या होगा, एक आपकी ये असेंबली होगी जो आपके फ्लूइड को एंटर करवा रही है, दो, ठीक है, ये आपके केमिकल एंटर हो रहे हैं, ये बेसिक फ्लूइड, दैट मीन्स मान लो यहाँ पे आपने वाटर डाला और आपको पता है कि आपको उसमें मिक्स करना है, कुछ सर्फेक्टेंट मिक्स करने हैं, ठीक है, या फिर कोई और भी एडिटिव यूज़ करने हैं, तो इस तरह से आपका एंटर हो रहा होगा। वो कहाँ पे जाएगा, ये क्या है, कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, एक बेल्ट होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, बेल्ट होता है, वो रोटेट होता है, ठीक है। दैट मीन्स आपका एस्केलेटर क्या बोलते हैं, वो सीढ़ी होती है, आप जिसमें खड़े रह जाते हो और स्टेयर्स अपने आप चलते हैं, एस्केलेटर, ठीक है, एस्केलेटर है। यहाँ पे आप सैंड डाल दो, ठीक है, ये बेल्ट यहाँ पे ऊपर जाएगा, सैंड को क्या करेगा, यहाँ से डाल दो, ये सैंड को यहाँ पे पहुँचा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपने सैंड रखी हुई है, आप यहाँ पे डालते जाओ, ये उसको यहाँ पहुँचा देगा, ठीक है। फिर सैंड प्रोपोर्शनल कंट्रोल, ठीक है, ये क्या करेगा, आपके सैंड को यहाँ पे देखो, इसका भी एक फ्लो रेट होगा, ठीक है, इसका भी एक मास फ्लो रेट या वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट होगा, और यहाँ से जो केमिकल आ रहा है उसका भी तो एक फ्लो रेट होना चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है।
उसके बाद आप क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, ये दो फ्लूइड आप इसमें मिक्स करोगे, ठीक है। इसमें ये सैंड को डाल रहा है, ये केमिकल को डाल रहा है, और आप एजिटेटर टैंक, ठीक है, आप ये टैंक में एजिटेटर चला रहे हो, और उसके बाद जो मिक्सचर है उसको सीधा आप पंप करने के लिए ले जा रहे हो। आइदर आप ट्रक से पंप कर रहे हो या किसी भी असेंबली से कर रहे हो। सो दैट इज़ दी सरफेस फैसिलिटी। ये वाली सरफेस फैसिलिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो आप हुपर यूज़ कर रहे हो, हुपर कुछ नहीं होता, वो मिक्सिंग के लिए होता है, ठीक है। हुपर कैन मिक्स दी दो कंपोनेंट, ठीक है। सो ये था हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ओके। ये सरफेस की फैसिलिटी है, इसमें और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा द वेल लॉगिंग टेक्निक्स, ओके, लास्ट में आपको दे के रखा हुआ है वेल लॉगिंग टेक्निक्स, ठीक है, ये सब लास्ट में। सो यू नो ऑल दी टेक्निक्स, ओके, यू नो दी ऑल दी टेक्निक्स। जब कहीं पे भी फ्रैक्चर होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करना है, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन दी वेल लॉगिंग, ओके। सो आप क्या कर दोगे, ओके। सो आप क्या करो, आप फ्रैक्चर फ्लूइड में कुछ गामा ट्रेसिस मिला दो ताकि आप पोस्ट फ्रैक्चर मेजर करो तो वो गामा की कुछ वैल्यू दे, ठीक है। या फिर यू कैन यूज़ दी सेकंड वन इज दी टेम्परेचर लॉक, क्योंकि आप कुछ कोल्ड फ्लूइड है वो आपका इनसाइड जा रहा है तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, डाउन हो जाएगा, ठीक है। आपका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। दैट इज द पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन लॉगिंग, ठीक है। ऐसा कुछ आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये आप वेल लॉगिंग भी यू कैन यूज, ओके, हमने देखा हुआ है, ठीक है। यू कैन आइडेंटिफाई द फ्रैक्चर विथ एनी वन ऑफ द लॉग, ठीक है। कौन कौन से लॉग थे, डेंसिटी में कम आ जाए, ठीक है, यू कैन रन द डेंसिटी लॉग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ठीक है। जो भी इम्पोर्टेंट था उतना हमने कवर किया, वो 3 लाइन याद रखना, ठीक है। 3 लाइन आप अपनी याद रखना जो बताई हुई है। पॉइजन रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा, फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर पे, पोर प्रेशर से क्या इफेक्ट आएगा, और क्लोजर प्रेशर पे, पोर प्रेशर से क्या इफेक्ट आएगा, दैट इज द इम्पोर्टेंट। उसके बाद कौन कौन से फ्लूइड यूज होते हैं तो दैट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द ड्रिलिंग। और अब तक जो सारे एडिटिव्स दिखे वही सब ऐड हो गए बेस्ड ऑन दी प्रॉपर्टी, तो ठीक है। और ये सब हमने ड्रिलिंग में देखा था तो वो मैंने बहुत स्किप किया इससे। इसके अलावा वी हैव सीन द डिज़ाइन, ओके, वी हैव सीन द डिज़ाइन, ओके। चली गई डिज़ाइन भाई, ठीक है, रब कर दिया है, ठीक है, कोई बात नहीं, बट यू नो, ओके, यू नो। सो दिस इज ऑल अबाउट दी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ओके। तो इसमें से अगर आपको बता दूं द इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ यू द गेट, सो फर्स्ट you know the design, okay, you should able to understand, you should able to calculate the formation breakdown pressure. Second one is the few property of the fluid, ठीक है, which you are using, but this is not important here because we have already seen the drilling fluid, वहाँ के जो एडिटिव्स है, ठीक है। मान लो आपको जेल स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आप क्या ऐड करोगे, ऑब्वियसली यू कैन ऐड दी पॉलीमर, आइदर सेल्यूलोज और जुआर गम, जेंथन गम। सेकंड चीज़ आपको बताओ कि आपको क्या करना है, वहाँ पे क्ले है उसको स्टेबिलाइज रखना है तो ऑब्वियसली यू विल ऐड दी KCl, ओके। ये सब चीज़ें आपको पता है। कोरोजन कंट्रोल करना है तो व्हाट यू विल ऐड, यू विल ऐड दी कोई भी NaOH हाइड्रोक्साइड ऑफ दी मेटल, ओके। तो ये सब चीज़ें पता है तो ठीक है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। थर्ड वन इफेक्ट ऑफ दी, हमने जो इफेक्ट देखा पॉइजन रेशियो का किसके ऊपर, FPD के ऊपर, पोर प्रेशर का FPD के ऊपर। थर्ड वन इज दी क्या देखा था इसके अलावा, क्लोजर प्रेशर का, पोर प्रेशर का क्लोजर प्रेशर के ऊपर इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट। आगे देखा सरफेस पे क्या क्या फैसिलिटी है वो आपको कहीं पे भी बोलना पड़े, ठीक है। तो यू नो क्या होता है, एक कन्वेयर बेल्ट होता है, फिर ऊपर चाहिए, ठीक है, ऊपर चाहिए, एजिटेटर मिक्सर चाहिए, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ये सब ट्रक में आप पंप यूज़ करो या फिर आप अपनी रिग बनाई हुई है तो उसमें दैट इज़ द वर्क ओवर पार्ट। वर्क ओवर में कौन कौन सी रिग होगी या CTU यूनिट से करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर होगा।
इसके अलावा कुछ बचा, हमने मॉडल देखे, ठीक है। तो मॉडल के फॉर्मूला तो मैंने नहीं करवाए हैं, बट यू कैन सी फॉर्मूला, आप नहीं याद रखोगे, ठीक है, रखना भी ट्राई भी मत करना। सेकंड चीज़, उन्होंने क्या सिग्निफिकेंटली बोला, ठीक है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स किसने विड्थ को ज़्यादा रखने को बोला, किसने लेंथ को ज़्यादा रखने को बोला। एंड लास्टली, ठीक है, यू कैन रिमेंबर दी मटेरियल। प्रोपन क्या क्या होते हैं, सैंड होता है या फिर सिरामिक होता है, और सैंड होता है वो मोस्टली कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर दी योर गेट पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज दी आई हैव कवर्ड ऑल दिस स्टफ, ओके। इसके अलावा कैलकुलेशन, इसमें हमने आगे देखा है डायमेंशनलेस कंडक्टिविटी, ठीक है, डायमेंशनलेस कंडक्टिविटी, डायमेंशनलेस हमने देखा हुआ है। तो आपको पता है इसकी वैल्यू हमें फ्रैक्चर में हाई रखनी है, तो क्या होगा, इफेक्टिव प्रोडक्टिविटी आपकी आएगी। इसके अलावा लिकोप टेस्ट हमने देखा है, ठीक है। तो उसमें 3 मेथड हमने अभी देखे, फ्लो बैक वाला मेथड, ठीक है, आप कम कर सकते हो टाइम। इसके अलावा हमने लिकोप टेस्ट, ठीक है, कंटिन्यूसली इंजेक्शन वही हुआ, और स्टेप रेट, ठीक है, ये मेथड थी, ठीक है। सो ये सब पोर्शन अगर आपको पता है, देन ऑब्वियसली यू डिड हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग, ओके। ये बहुत ज़्यादा इतना पढ़ाया भी नहीं जाता और जगह पे, ठीक है। सो आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दोस चैप्टर, ठीक है। चैप्टर पूरा मत पढ़ना, ठीक है, एलन और थॉमस का पूरा चैप्टर मत पढ़ना। जो जो बताया है उतने से आपका गेट में तो काम 100% चल जाएगा। इतना भी मैं आई अपीयर्ड इन दी गेट, मुझे इतना भी नहीं पता होता, ठीक है। ये सब कंपोनेंट मुझे तो बस वो कैलकुलेशन आता था और मॉडल का पता था थोड़ा बहुत। इसके अलावा जो पैरामीटर आपको बताए वो मुझे उस टाइम पे नहीं पता थे, बट यू कैन थिंक, ओके, वो थिंक करने पे है, ठीक है। अगर आप थिंक कर सकते हो तो दैट मीन्स यू कैन आंसर दी एनी क्वेश्चन, ओके। बट एक चीज़ पता होनी चाहिए उसके लिए कि सैंड अनकंसोलिडेटेड शेल है या वो है, तो उसका क्या होता है, पॉइजन रेशियो हाई होता है, और अगर आपका लाइमस्टोन और डोलोमाइट है तो उसका पॉइजन रेशियो लो होता है। तो ये चीज़ तो पता होनी चाहिए ना, ऑब्वियसली पता होनी चाहिए, तभी आप आगे का आंसर दे पाओगे। तो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट, ओके। पूरी बुक मत पढ़ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वर्क ओवर में, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद।